Probably in 2025, we at Meta are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that can write code. We're doing our business plan for next year for 2025 right now. We're not adding any more software engineers next year because we have increased the productivity this year with Agentforce and with other AI technology that we're using for our engineering teams by more than 30% to the point where our engineering velocity is incredible. Hi everyone. Let's discuss very interesting topic that is trending in 2025 and many peoples are in fear because of this. In the recent podcast, Mark Zuckerberg said that AI going to replace software engineers or mid-level software engineers in Meta in the year 2025. And this is a very big statement said by Mark Zuckerberg. Not only him, Salesforce CEO said that they don't want to hire freshers in 2025 or they don't need software engineers. This type of statement said by our tech leaders that are the founders of the company. And similar to this, said by NVIDIA CEO. Listen to this. And so these agents are able to perform all kinds of tasks. Some of them are maybe marketing agents, some of them are customer service agents, some of them are chip design agents. NVIDIA has chip design agents all over our company helping us design chips. Maybe they're software engineering agents. Maybe they're able to do marketing campaigns, supply chain management. And so we're going to have agents that are helping our employees become super employees. These agents or agentic AI models augment all of our employees to supercharge them, make them more productive. And most of the people's saying this type of similar stuff, whether we are talking about the tech leaders, whether they are working in a big organization on a good positions, they are also saying the same. Okay. So let us discuss what is all about AI and how it is going to replace software engineers or if it is replacing or not. So let's discuss on this topic and also mention your thoughts in the comments also. I would happy to listen that. So first of all, I will give you my point of view on this topic. So I am working in tech giants from 4 years. So I saw the journey of things. Like in my college days, I used to work on Java or other things. But that are all I am working at manually. I am solving errors using different type of strategy and all I am doing by alone. Okay. But now, not these things are possible. We have to upgrade, we have to be smart, we have to do things faster and प्रोडक्टिव वे. सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से लेके. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे आईटी सेक्टर में कंप्यूटर आया और जब कंप्यूटर आ रहा था पूरी दुनिया में बहुत ही पैनिक था कि यार क्या होगा, ये हमारी ह्यूमंस जॉब चले जाएगी इससे. और डेफिनेटली जॉब गई भी, बट बहुत सारी ऐसी जॉब आई जिसने कंप्यूटर को अडॉप्ट किया, उसके लिए मल्टीपल्स जॉब ओपनिंग्स आ गई थी. और आप अभी भी देख रहे हो, हम अभी भी कंप्यूटर पे ही यूज करते हैं हर चीजें. और आज भी आप देखोगे तो कंप्यूटर का बहुत सारा यूसेज है. बट जो लोग ने उसको अडॉप्ट नहीं किया वो लोग आउटडेटेड हो गए और उनकी जॉब चले गई या तो धीरे धीरे वो वाली पोजीशन रिड्यूस हो गई या डिग्रेड हो गई. बट न्यू पोजीशंस एवरी टाइम ओपन होते रहे. ओके. और अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज के टाइम पे यार कोई भी एक कोडिंग लैंग्वेज सीखता है और उससे प्रोग्राम बनाता है. तो पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के टाइम में कोडिंग लैंग्वेज सीख के आप कंपनी में जॉब कर रहे होते थे और वहाँ पे आपको कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एक नॉर्मल सी एप्लीकेशन पे काम हो रहा होता है और वो ईयरली तक चलता रहता था. ठीक है? क्योंकि सब कुछ मैनुअल हो रहा था और बहुत ही कुछ टूल नहीं थे. आपको मैनुअल राइटिंग, जावा स्पेसिफिक यूज़ करके आपको कोड बनाना होता था. वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती थी और वैसे वो कोड चलता था. जैसे आप मान लो एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस टाइप का वो ज़माना था जहाँ पे इस टाइप की एप्लीकेशन बना करती थी. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जैसे मेरे टाइम की बात करो या आपके टाइम की बात करें अब, तो आपके पास फ्रेमवर्क्स है, आपके पास एंगुलर है, आपके पास नोड है, आपके पास स्प्रिंग है. तो जावा का रोल तो है वहाँ, बट आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती है जिसके थ्रू आप इंस्टेंटली एक रनिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो और उसको डिप्लॉय भी कर सकते हो. तो आप देख रहे हो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो गया, कितनी प्रोसेस पास्ट हो गई. पहले आप जार यूज़ करते थे, जार को डिप्लॉय करते थे, अलग-अलग चीज़ थी. फिर आपको एक स्ट्रक्चर मिल गया, वो स्ट्रक्चर में प्री डिफाइंड लाइब्रेरी मिल गई फ्रेमवर्क के अंदर. बस आपको अब
कमांड बोलना होता है, बहुत सारी लाइब्रेरी उसमें अवेलेबल है, वो सब आपको पता होना चाहिए और आप लॉगिन, लॉग आउट, बहुत सारे वेब पेजेस ये सब क्रिएट कर लोगे और एक वेब एप्लीकेशन अच्छी से बना लोगे। और अगर आपको फ्रंट एंड एप्लीकेशन बनाना है तो उसी तरीके से वहाँ पे एंगुलर वो सब चीज़ें मैनेज कर लेती है कि एपीआई कॉलिंग फ्रंट एंड से बैक एंड हो रही है और एंगुलर वो रिस्पॉन्स वहाँ पे रख के दे रही है आपको। तो इस तरीके से उस ज़माने में चलता था, या अभी के ज़माने में भी चलता है। बट अभी क्या सीन चेंज हुआ है, जैसे आई एम वर्किंग ऑन एआई फ्रॉम पास्ट 1 ईयर, ओके। तो मैंने जेन एआई भी यूज़ किया, मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा कि यार क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को स्पेशली निकाल सकता है या डाउन स्कोप कर सकता है, या उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। तो मुझे क्या लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से, जैसे कि आपने देखा होगा फेसबुक ने अपना नाम हटा के मेटा कर दिया था। उस समय भी बहुत बज़ था यार, मेटावर्स आ रहा है, मेटावर्स आ रहा है, बट आप देखोगे तो वो फ्लॉप हुआ, ठीक है? अब यहाँ पे किसी की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ कंपनी की, कंपनी के पास विज़न्स होते हैं, लीडर्स के पास विज़न होते हैं कि यार ऐसा फ्यूचर हो सकता है, तो उस तरीके की चीज़ों पे वो काम करते हैं। बट आप अभी के लिए देखोगे तो मेटा का मेटावर्स उतना कुछ काम नहीं कर रहा है, कोई उसको यूज़ नहीं करना चाह रहा है, ठीक है? तो उस तरीके की चीज़ें भी होती है। तो एक प्रेडिक्शन होता है जिसके थ्रू लीडर्स ड्राइव करते हैं चीज़ें या कंपनीज़ ड्राइव करती है, और कौन-सी कंपनी सबसे पहले ड्राइव कर रही होगी? सबसे पहले कंपनीज़ वाली ड्राइव करती है जो टॉप कंपनीज़ होती है, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ जो टॉप जायंट्स होते हैं, वो लोग हमेशा ड्राइव करते हैं न्यू चीज़ें और बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम ये चीज़ में मास्टर बन गए तो भई हमारा तो सेट है, हमारी चीज़ें चल जाएगी। तो ये आपको फ़ायदा मिलता है अगर आप बड़ी कंपनी के साथ हो, तो आपको सब चीज़ें नई-नई चीज़ों पे वर्क करने मिलेगा, आपको अपडेशन रहेगी मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ यहाँ पे। और बीच में एक और आया था, ठीक है? अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले या 1 ईयर पहले जब चैटजीपीटी अनाउंस हुआ, उस समय क्या हुआ? बहुत सारे कंपनीज़ ने या एजुकेशन कंपनी ने या इन्फ्लुएंसर्स ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बहुत बताया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो, अब तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की नीड नहीं है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की नीड है। बट आखिरकार क्या हुआ है? आई एम बिकम द प्रॉम्प्ट इंजीनियर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही अपडेट हो गया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में। वही लिखता है अब प्रॉम्प्ट, वही कोड बनाता है, वही प्रॉम्प्ट लिखता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही छोटा सा टास्क है कि आप कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहे हो, आपने प्रॉम्प्ट के तरीके पढ़ लिए कि भाई ये तरीके होते हैं, डिज़ाइंस पढ़ लिए कि प्रॉम्प्ट में भी तरीका होता है कि कैसे बोलना है उसको, कैसे उससे सॉल्व करवाना है चीज़ें, एआई कैसे बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो वो सब चीज़ें आप 10 दिन में सीख सकते हो। तो वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, और वो मिथ था बिल्कुल कि आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर लो। अभी भी आप देखते हो तो कोर्स सेल किए जा रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हो तो कोई कंपनी आपको हायर नहीं करेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से मुझे नहीं लगता कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, और आज भी कर रही है। आप देख लो कोई भी कैरियर पिच कोई भी कंपनी का उठा लो, टॉप कंपनीज़ का, कोई भी कंपनी के पास प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की स्पेसिफिक जॉब नहीं है। उन्होंने सेम कंपनी के इसमें ही जॉब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि जेन एआई आना चाहिए आपको। जेन एआई के टूल्स आपको पता होना चाहिए। जस्ट लाइक कि आपको डिप्लॉयमेंट के टूल्स पता होना चाहिए, जैसे जेनकिंस हो गया, उसी तरीके से आपको एआई के अब टूल पता होना चाहिए, आपको चलाते आना चाहिए। जस्ट लाइक गिटहब कि आपको गिटहब आता है। उसी तरीके से ये टूल्स है। अब अगर हम प्रॉपर एआई की बात करें, जैसे मैं एआई को बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। चैट जीपीटी का 4 सब्सक्रिप्शन मैं यूज़ करता हूँ। तो उसकी अगर हम बात करें, तो यार वो कैसे हेल्पफुल है आपके लिए? जब आप कोई भी कोड लिखते हो या आपके पास कुछ डिज़ाइन आता है कोड लिखने का, कुछ भी चीज़ें आती है आपके पास, तो आप क्या करते हो? उसको बोलते हो कि राइट अ कोड फॉर दिस, ओके? या मेरे पास ऐसा डिस्क्रिप्शन है कोड बेस का, इसमें राइट करो, या ये फंक्शन मेरे लिए बना के दो। तो डेफ़िनेटली यार वो बहुत फ़ास्ट हो गया है। चैटजीपीटी बहुत अच्छे सॉल्यूशन देता है। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो की बात करें जो हम पहले यूज़ किया करते थे, उसपे आपको मैनुअली लोग डिस्कशन में लिखते थे। उसको चला-चला के देखना पड़ता था, फिर पता चलता था एक चल रहा है, एक नहीं चल रहा है, जो चल रहा था अब उसको यूज़ करते थे। इस तरीके से उस समय की डिबगिंग प्रोसेस होती थी, और ये मैंने भी की है। जब मैं ओला में था तो मैं इस तरीके का डिबग करता था क्योंकि चैटजीपीटी नहीं था। अब क्या हो गया है, अब आप चैटजीपीटी को देते हो और वो आपको स्पेसिफिक सॉल्यूशन देता है उस चीज़ का, और ऑप्टिमाइज़ भी करके देगा। अगर आप बोलोगे उसके पास मल्टीपल प्रॉम्प्ट अगर आप पुट करोगे, तो आपको वो भी करके देगा। तो इससे क्या पता चला हमको, जो मैं ओला में कर रहा होता था 5 दिन में, वो चैटजीपीटी की हेल्प से 1 दिन में होगा। तो क्या हुआ? डेवलपर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। डेवलपर प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो कंपनी ने देखा यार काम हम फास्ट कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ यूज़फुल है, चैटजीपीटी और अदर थिंग्स। तो कंपनी ने इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया या सब लोग इसको यूज़ करने लगे।
तो इस तरीके से ये फ़ायदा देता है। अब जो लोग ऐसा सोचेंगे यार मैं एआई को नहीं सीखूँगा, मैं एआई के टूल्स नहीं सीखूँगा, मैं चैट जीपीटी यूज़ नहीं करूँगा, उसके साथ फ़ैमिलियर नहीं होगा। तो डेफ़िनेटली जैसे कंप्यूटर जो लोग ने नहीं सीखा वो पीछे चले गए या वो उनकी स्किल्स कम हो गई, उसी तरीके से अगर जो ये सब नहीं सीखेगा उसकी स्किल्स कम हो जाएगी। तो मेरा यही सजेशन रहेगा यार कि ये सब चीज़ें ज़रूर पढ़ें। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके करियर में, ठीक है? या आप डेली बेसिस पे जो काम कर रहे हो उसमें प्रोडक्टिविटी आपकी कैसे इंप्रूव होगी, आप अच्छे डेवलपर आप कैसे कहलाओगे कि आपको एआई के टूल्स चलाते आना चाहिए, आपको उससे चीज़ें सॉल्व करते आना चाहिए। वो कैसे आएगी जब आप डेली बेसिस पे वो सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो आप फ़ैमिलियर हो जाओगे चैट जीपीटी से कि कैसे उसको यूज़ करना है। ये पहली चीज़ है। और मार्केट में और भी ज़्यादा टूल्स हैं। जैसे ये तो चैट जीपीटी तो बहुत नॉर्मल है, आपको चैट विंडो मिल रही है, उस पे आप पेस्ट कर रहे हो और आप उससे पूछ रहे हो। फिर आता है गिटहब कोपायलट जो माइक्रोसॉफ्ट का है। उसने क्या किया, इंटेलिजे के साथ या अदर टूल्स के साथ इंटीग्रेशन कर दिया और आपके प्रोजेक्ट में सजेशन देने लगा कि प्रोजेक्ट के अंदर आप ऐसा चेंज कर दो, ये फंक्शन को आप ऐसा चेंज कर दो। तो वो भी थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी क्योंकि चैट जीपीटी को कभी-कभी कॉन्टेस्ट नहीं होता है आपके रेपो का, आपके कोड का। बट कोपायलट को थोड़ा कॉन्टेस्ट है। तो वो सजेशन बताता है आपको कि ये फाइल मैंने पढ़ी, ये फाइल मैंने पढ़ी, ये फाइल मैंने पढ़ी। उसके बाद मुझे लगता है कि ये वाला कोड ऐसा लिखा जाए तो सही रहेगा। तो देखो, आपको ये भी सजेशन मिल गया कि ऐसा कोड लिखना है और मेजॉरिटी ऑफ केस में 80% ऑफ केस में अगर आप सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, मीडियम लेवल की भी कर रहे हो तो सच बात है वो कि आपको वो अच्छा सॉल्यूशन देगा। आप उसको बस टेस्ट कर लो अच्छे से, अपने लोकल लो और आपका काम हो जाएगा। फिर आप प्रोडक्शन में भी टेस्ट कर सकते हो रियल डेटा के साथ। ओके, तो इस तरीके से आप गिटहब कोपायलट से भी कर सकते हो काम। उसके बाद आता है केडर एआई। अब ये एक एडवांस लेवल पे है, ठीक है? एडवांस लेवल पे कैसे? इन्होंने क्या बोला कि हम लोकल सिस्टम में फाइल्स क्रिएट करके देंगे आपको। हम आपकी रेपो भी पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे फाइल्स भी न्यू बना के देंगे। आपको अगर स्क्रैच से प्रोजेक्ट बिल्ड करना है, तो आप बस बोलिए कि राइट अ कोड फॉर मी फॉर दिस प्रोजेक्ट। सपोज़ राइट अ नेटफ्लिक्स क्लोन फॉर मी यूजिंग एंगुलर एंड स्प्रिंग बूट अब वो आपको क्रिएट करके देगा। हाँ, डमी टाइप का क्रिएट करके देगा बट अच्छा क्रिएट करके देगा और इसका डेमो मैं आपको दिखाऊँगा और ये वीडियो जल्दी से हमारा लाइव होने वाला है, तो स्टे कनेक्टेड। ये वीडियो हम देखेंगे किस तरीके से वो प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दे देता है एंड टू एंड, पूरा बना के रनिंग प्रोजेक्ट, ठीक है? तो वो भी हम देखेंगे और उस आपको थोड़ा तो डर लगेगा, ठीक है? तो ये भी एक टूल है जो आपके लोकल सिस्टम में क्रिएट करके देता है। उसी तरीके से कर्सर करके एक टूल है जो एडर एआई का कॉम्पिटिटर है, वो भी सेम चीज़ करता है। बैकएंड में ये चैट जीपीटी की एपीआई ही कॉल करते हैं बट लोकल सिस्टम का एक्सेस होने की वजह से ये लोग आपको और अच्छे सजेशन दे पाते हैं बिकॉज़ ये आपके लोकल रेपो पढ़ रहे हैं और उनको ये भी एक्सेस है कि आपको फाइल क्रिएट करके दे। बस आपको क्या करना है, गिट कमिट पे क्लिक करना है और आपका कमिट हो जाएगा गिटहब के अंदर। इतना ही अब आपका काम है और वो कोड आपको पता होना चाहिए आप क्या पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो और उसने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं। ये सब चीज़ें आपको अगर आती है मतलब आपके देखो टास्क कितने कम हो जा रहे हैं। पहले डेवलपर ये सब खुद कर रहा होता था। अब आपके पास एआई है, सजेशन आ रहा है आपको कोड का, बस आपको कोड समझ में आना चाहिए, आपको चीज़ें लॉजिकल थिंकिंग आपकी करेक्ट होना चाहिए, जो कि डीएसए से आती है, ठीक है? वो आपकी करेक्ट है तो आप और फास्टर वे में काम कर पाओगे, जो 4 दिन में होता था वो 1 दिन में होने लग जाएगा। और ये रिसेंटली ये मेरा खुद का मानना है कि यार मैं जब 15 दिन में जो काम करता था वो अब 7 दिन या 5 दिन या 4 दिन ऐसे टाइम में हो रहा है, ठीक है? इतना फास्ट हो गया है वर्क, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी, जब हम ये सब टूल्स का यूज़ करते हैं। और उसी तरीके से पास हमारे पास गूगल का जेमिनी भी है, जो चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर है और मेटा का लामा भी है। ये भी सेम तरीके से आपको सजेशन देते हैं, ओके? इनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अगर आपको एक आता है कोई भी चलाते, चैट जीपीटी आता है, कोपायलट आता है, ये सब एक आता है, तो वो सफिशिएंट है आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए, एटलीस्ट पर आपको एक आना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग काम ही नहीं कर रहे होंगे ये सब चीज़ों पे, तो वो नहीं करना है यार, वो सब आपको करते रहना है, अदरवाइज़ देयर इज़ अ चांस कि अगर आप आउटडेटेड हो गए, तो आपको यार रिप्लेस करने के लिए लोग मिल जाएँगे। क्योंकि देखो, जब जो कॉलेज से आ रहे हैं वो तो नया वाली चीज़ पढ़ के जाएँगे, धीरे-धीरे वो करिकुलम में आ जाएगा, चैट जीपीटी यूज़ करना, ये यूज़ करना, वो यूज़ करना, टूल्स आ रहे हैं, तो वो नए डेवलपर्स तो पढ़ लेंगे। पुराने लोग जो नहीं पढ़ेंगे वो रिप्लेस हो सकते हैं। यार उतने कॉम्पिटेंट नहीं रहेंगे वो, उतनी उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए आपको तो पढ़ना चाहिए। मेरा सजेशन यही है, क्योंकि मैंने देखा भी काफ़ी प्रोडक्टिविटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी अगर आप वो सब चीज़ें यूज़ करते हो। काफ़ी आप तूफ़ान मचा रहे होंगे कंपनी के अंदर और धड़ाधड़ आपका कोड भी हो रहा होगा।
और आपको उससे सीखने भी मिलेगा। आप उससे डीबग करवा सकते हो, आपकी कोई एरर आ रही है उस पे पेस्ट करो। जैसे हम स्टैक ओवरफ्लो पहले पहले गूगल से ढूँढते थे, उसी तरीके से उस पे दो, वो आपको सजेशन देगा कि इसमें ये चेंज कर दो, वो चेंज करके चला के देखो, टेस्ट करके देखो, शायद आपका चल जाएगा। तो उससे आपका प्रोडक्टिविटी बच गया कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, उसने दे दिया 3 तरीके आपको, वो तरीके का डिस्क्रिप्शन उसको बोलो कि और समझाए, वो समझा देगा। इस तरीके से आपकी चीज़ें सॉल्व हो रही होगी। तो अभी के मार्केट के हिसाब से आपको क्या लगता है, जब सभी लोग, सभी लीडर्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि एआई रिप्लेस करने वाला है, मुझे तो लगता है कि यार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है वो रहेंगे, और वो रहेंगे। अभी एआई इतना पावरफुल नहीं है, और मुझे लगता है होगा भी नहीं शायद। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नीड होगी। ये हो सकता है कि कुछ नई जॉब्स ओपन हो और पुरानी जॉब्स हट जाए। जैसे हर बार होता है, जब कंप्यूटर आया था तो तब थोड़ी चीज़ें अलग हो गई थी, अभी भी ऐसा हो सकता है। तो हमेशा हमें नई चीज़ें अडॉप्ट करते रहना है। जो नई चीज़ें अडॉप्ट करेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि यार वो तो रिप्लेस नहीं होगा। बट फ्यूचर किसी को नहीं पता है। बट अभी देख के ऐसा ही लग रहा है कि कोई भी पूरा रिप्लेस नहीं हो सकता है, और कंपनीज़ को भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। कंपनी भाग रही है एआई रेस की तरफ, बट पूरा किसी को पिक्चर नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा। बट वो पीछे नहीं रहना चाह रहे, और ना ही अपने एम्प्लॉइज़ को पीछे रखना चाह रहे, क्योंकि एट द एंड प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव हो रही है। यार 40-50 परसेंट प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट पर पर्सन छोटी बात नहीं है। 50% काम आपका आसान हो जा रहा है, या 4 दिन का काम 2 दिन में हो जा रहा है। तो सोचो कंपनीज़ के लिए कितना बेनिफिट है कि ये अब किसी को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या कुछ भी स्टार्ट करना है, नया प्रोडक्ट बनाना है कोई कंपनी को, इतना टाइम नहीं लगेगा। धड़-धड़ कोड आपके लिए लिखा जाएगा, बस आपको अच्छे डेवलपर्स चाहिए जो उसको समझे, और टेस्ट करे, और चीज़ें करे, और बेहतर बनाए वो कोड को। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको रिप्लेस कर सकती है, अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हो तो। अगर कर रहे हो तो यार बहुत सही है। बट मेरा अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा कि बहुत सारी कंपनीज़ ने ये सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं है। को-पायलट किसी-किसी के पास है, बाकी लोग के पास वो भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो उस केस में, आप अपना चैट जीपीटी, अपनी चीज़ें देख के सीखो, अपनी चीज़ें करो। हाँ, समझ गया हूँ मैं कि कंपनी आपको एक्सेस नहीं देती है कि आप चैट जीपीटी खोल सकते हो वहाँ पे। बट आप अपनी चीज़ें बना के उसको सीखो। कि आप, ऐसा ना हो कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता ना हो, आपको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में पता ना हो। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 40-50% इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, पर डेवलपर। इसलिए कंपनीज़ यही सब देख के कंपनीज़ बोल रही है कि हमें और डेवलपर्स नहीं चाहिए, या और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नीड नहीं है, या मिड लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम एआई करके दे रहा है। बट हाँ, वो पूरा सही नहीं करता है, ठीक है? आपको वहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन या ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप रिप्लेस हो रहे हो। और ये भी हो सकता है कि एआई के आने के बाद आपकी डेटा वाली जॉब बढ़ जाए, आपकी एआई वाली जॉब बढ़ जाए, आपकी और नई-नई जॉब्स निकल जाए, जो उस समय के हिसाब से ज़रूरी हो, और पुरानी जॉब थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाए, या चेंज हो जाए, उसमें और भी चीज़ें ऐड हो जाए। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि अब बैकएंड से सिर्फ़ बैकएंड का नहीं माँग रहे, बैकएंड से वो बोल रहे हैं थोड़ा डेटा का भी एक्सपीरियंस हो, या बैकएंड के साथ उनको एंगुलर आती हो, फुल स्टैक हो। तो रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बढ़ते जा रही है एज़ अ जॉब के लिए, कि पहले हम जाते थे तो जावा आती है, रख लिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेंज हो गया है सिनेरियो, अब जावा भी चाहिए, पाइथन भी चाहिए, डेटाबेस भी चाहिए। साथ में फुल स्टैक वाली चीज़ें भी चाहिए कि फ्रंट एंड भी आता हो थोड़ा बहुत। तो देख रहे हो आप मार्केट कैसा चेंज हुआ है 3-4 इयर्स में, और आगे जाके शायद और होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपडेट रहना है। अगर आप अपडेट रहोगे तो यार कोई एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एआई बनाने वाले बन जाओ, क्या इश्यू है? कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? हमेशा जॉब तो रहती है, बस ये होता है कि डिफरेंट टाइप की जॉब होती है। तो जो क्यूरियस बंदे होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमेशा से क्यूरियस रहे हैं, राइट? तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का हमेशा से ये रोल होता है कि यार वो अच्छे से चीज़ें करे, वो नई चीज़ें सीखे और उसको अडॉप्ट करे। यही मेन काम होता है एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और आपको वही करना है, आपको एआई फिर रिप्लेस नहीं कर सकता है। यू आर बिकम इर्रिप्लेसेबल। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि कैसे-कैसे मैं टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, और मुझे क्या पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में लगता है कि कंपनीज़ कैसा सोच रही है, कंपनीज़ कैसा करना चाह रही, क्यों कंपनीज़ ऐसा बोल रही है कि यार हमें और हायर नहीं करना है, कितने परसेंट प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। आप लोग अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये सब यूज़ करो। तो ये सब मेरी टिप्स है आप लोगों के लिए। अगर ये सब चीज़ें आपको समझ में आई हो, तो कमेंट में बताना। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, तो फिर भी आप कमेंट में बता सकते हो, मैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।
होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।